heart and confess with your mouth that Jesus is Lord. But who was Jesus? Before, in eternity, he was the Word. This Word of God came to Jeremiah and touched his lips, and the Bible says, Lord stretched forth his hand and touched the mouth of Jeremiah. बाइबल कहती है अपने मुंह से अंगीकार, अपने मन में विश्वास करोगे कि यीशु प्रभु है, पर वो यीशु नाम प्रकट किए जाने से पहले अनंत में वो वचन था और ये वचन यिर्मयाह के पास आया, उसके मुंह को छुआ. So यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता ने किसको देखा? Who did Jeremiah see? किसको देखा? Who did he see? किसको देखा? जीसस को देखा. He saw Jesus. उसके मुंह को किसने छुआ? Who touched the mouth? पे अटेंशन. ध्यान दीजिएगा. आगे कुछ मैं आपको बताने वाला हूं. Genesis 15 verse 1. उत्पत्ति 15 उसका 1. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा. कौन आया अब्राहम के पास? Who came to Abraham? हाँ, यहोवा का यह वचन. मगर अगर आप सेंसिटिव नहीं हो तो आपको लगेगा यहोवा की आवाज दर्शन में अब्राहम के पास आई. But if you're not sensitive, you will think that God's voice came to Abraham in a vision. But the Bible says the word of the Lord came to Abraham in a vision, and I'll tell you why this was not a disembodied voice. This was Jesus. क्यों जब यहाँ लिखा है कि यहोवा का ये वचन अब्राहम के पास दर्शन में आया, तो ये कोई देह रहित आवाज नहीं थी, लेकिन यीशु स्वयं थे. Hear this. ध्यान धरो, हाँ, pay attention how the Bible says. The word of the Lord came to Abraham in a vision saying. अरे अगर वचन आ गया तो why it says saying? How is the word saying? The word of the Lord came to Abraham saying. This word is saying. अंग्रेजी ने ऐसा लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास आके कहने लगा. अगर ये वचन है तो कैसे कहने लगा? मैं आपसे नहीं कहूंगा, मैं आपको एक बात बताता हूं और मेरी बात आपसे कहने लगी. That does not make sense. अगर मैं बात बोल रहा हूं आपको तो वो बात बोल रहा हूं, मगर मैं बोल रहा हूं कि जो वचन मैं आपको दे रहा हूं वो वचन. The word of the Lord came to Abraham, and now this word is speaking to Abraham. And hear this, the word of the Lord came to him in a vision. So in the vision he is not seeing darkness and a voice. He is seeing somebody in a vision. यहोवा का वचन अब्राहम के पास एक दर्शन में आया और उससे कहने लगा. उस दर्शन में अब्राहम अंधेरा देखकर कोई आवाज नहीं सुन रहा है, वो एक व्यक्ति को देख रहा है जो परमेश्वर का वचन है उसको. Okay, now this word of the Lord, here what is he saying to Abraham? अब सुनिए कि ये परमेश्वर का जो वचन है अब्राहम से क्या कह रहा है. Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your exceedingly great reward. हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं. ठीक है अभी तक? ठीक है, अभी तक भी ठीक था, अभी और अच्छा हो जाएगा. Even till now it was okay, but it will become better. This word that came to Abraham, he speaks. ये वचन जो अब्राहम के पास आया, ये बात करता है. Not only this word speaks. ये वचन केवल बोलता नहीं. Now go to verse 5. This word who came to Abraham in a vision, he brought him out of his tent. Come out. ये अब्राहम के पास जो वचन आया सिर्फ बोलता ही नहीं है, अब्राहम को उसके तंबू से बाहर भी लेके आया. He. Who is this he? ये किसकी बात हो रही है? The word that came to Abraham in a vision. ही लिखा है अंग्रेजी में, जो वचन अब्राहम के पास In the beginning was the word. आदि में वचन था. The word was with God. वचन परमेश्वर के The साथ था. word was God. और वचन परमेश्वर था. This word came to Abraham in a vision. ये वचन अब्राहम And के पास said, दर्शन में आया. Abraham, do not be afraid. I am your exceedingly great और reward. अब्राहम से कहा, अब्राहम मत डर, मैं तेरा महान प्रतिफल हूँ. And this word brought him out of his tent. और ये वचन उसको तंबू से बाहर लाया. And said, look towards heaven. और कहा स्वर्ग की ओर देख. Count the stars. तारों को गिन. कौन बोल रहा है अब्राहम को? Who is saying this to Abraham? कोई बोल रहा है अब्राहम को. Someone is speaking this to Abraham. The Bible does not say he just heard a voice. बाइबल ये नहीं कहती अब्राहम ने एक आवाज को सुना. Somebody brought him out of his tent. कोई उसको लेके आया उसके तंबू से And बाहर. told him, look at the stars. और कहा तारों को देख. But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, no one has seen God at any time. किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा. But the one begotten God who is in the bosom of the Father, he reveals God. लेकिन वो इकलौता परमेश्वर जो पिता की गोद में है, वो परमेश्वर को दर्शाता है. And this God, और ये परमेश्वर is the Word वचन है, who was in the beginning जो शुरुआत से था with God. परमेश्वर के साथ. Okay, okay. ठीक है अभी तक? So Abraham के पास कौन आया? Who came to Abraham? The Word. वचन.
क्या आया? कई बार आप जब सुनोगे उसमें क्या, यहोवा का वचन आया, तो हम लोगों को क्या लगता है वो पढ़ के? यू थिंक द वॉइस केम, या आपको लगता है कि आवाज आई when we hear the a prophet heard or the word of the Lord came. ओ भविष्यवक्ता ने सुना कि यहोवा का वचन आ रहा But let's see passage after passage. है। लेकिन एक के बाद एक वचन में देखते हैं। Okay, let's go to Jeremiah. यिर्मयाह Jeremiah chapter 1 verses 4. Then the word of the Lord came to me saying. तब यहोवा का यह वचन मेरे पास आके कहने लगा। फिर अंग्रेजी में बस अब जेरेमाया जो नबी है उसके पास यहोवा का वचन आया और वो यहोवा का वचन जेरेमाया को कह रहा है। Now the word of the Lord came to Jeremiah and that word of the Lord is speaking to Jeremiah something. Before I formed you in womb. इससे पहले कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में बनाया। किसने रचा तेरे को? हाँ, किसने रचा तेरे को तेरी माँ के गर्भ में? नहीं, वर्ड क्या वर्ड कह रहा है वहां पे? here I, मैंने तुझे तेरी मां के गर्भ में रचा। मगर यूहन्ना में लिखा है all things were made by him and without him nothing was made that was made. In John it says सब कुछ उसके द्वारा बना और ऐसा कुछ भी नहीं जो है जो उसके बिना बना हो। Come on guys, talk to me. Hear the word. Who is? जॉन में लिखा है सारी सृष्टि जो हुई वो किसके द्वारा हुई? वचन के द्वारा। ये वचन जो आदि में परमेश्वर के साथ था और जो परमेश्वर था। In John it says everything was created through him and it says this word was with God from the beginning. Now this word has come to Jeremiah and says Jeremiah, और ये वचन अब यिर्मयाह के पास आके कहने लगा, Before I formed you in your mother's womb, यिर्मयाह इससे पहले कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में बनाया, I knew you. मैं तुझे जानता था। Before you were born, इससे पहले की तरह जन्म हो, I sanctified you. मैंने तुझे पवित्र किया, I ordained you as a prophet to the nations. तुझे जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहराया। अभी सुनो, यिर्मयाह के पास कौन आया था? Who came to Jeremiah? Come on, talk to me. कौन? Jesus लिखा है वहां पे। Let's just stay to the passage. कौन आया यिर्मयाह के पास? Word. Jesus रिवील नहीं हुआ था नाम तब तक। यिर्मयाह के पास कौन आया? वचन आया यहोवा का। Now hear this. The word of the Lord came. If it was just an encounter of a voice. अगर ये केवल एक आवाज से उसका साक्षात्कार था। Now hear this. Verse 9. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. तब यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। Okay. अभी तो कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था यिर्मयाह से? Who was speaking to Jeremiah? वचन. The word. But now the Bible says the Lord stretched forth his hand and touched the mouth of Jeremiah. पर बाइबल कहती है कि यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाकर यिर्मयाह के मुंह को छुआ। So who is the Lord here? यहाँ कौन है यहोवा? The word वो वचन is the Lord. वो वचन ही प्रभु है। If you confess with your mouth that Jesus, who is the word, is the Lord, you shall be saved from your sins. अगर तुम अपने मुंह से अंगीकार करोगे कि यीशु जो वचन है वो यीशु प्रभु है, तुम अपने पापों से बचा जाओगे। यीशु कौन है? यीशु आदि में क्या था? Who was वचन था। Jesus in the beginning? He was the word. How did you get saved? आपने If कैसे you उद्धार पाया? confess, if you believe in your heart and confess with your mouth that Jesus is Lord. But who was Jesus? Before, in eternity, he was the word. This word of God came to Jeremiah and touched his lips, and the Bible says Lord stretched forth his hand and touched the mouth of Jeremiah. बाइबल कहती है अपने मुंह से अंगीकार, अपने मन में विश्वास करोगे कि यीशु प्रभु है, पर वो यीशु नाम प्रकट किए जाने से पहले अनंत में वो वचन था और ये वचन यिर्मयाह के पास आया, उसके मुंह को छुआ। So यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने किसको देखा? Who did Jeremiah see? किसको देखा? Who did he see? किसको देखा? जीसस को देखा। He saw Jesus. उसके मुंह को किसने छुआ? Who touched the mouth?